آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لو، کوئی ہے جو چاہتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے آپ میں سے ایسا؟ اور ٹھہرا بھائی، اور میاں، کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو کہتا ہو کہ ہم امریکہ کی پالیسیز پر چلیں؟ ایک بتا دے مجھے. تو پھر یار یہ قوم متحد ہے، حکمران نہیں سمجھتے. لیکن قادری صاحب صرف نعروں سے تو کام نہیں چلے گا. نعرہ کیوں؟ یہ ادھر سے میں سوال لے لیتی ہوں. جی ایک سیکنڈ میں. یہ سر ہم اٹامک پاور ہیں. بالکل ٹھیک سر ٹھیک، گڈ سر دیٹس اٹ. سر میری بات یار سنیں تالی ذرا. بجا دو اپنے لیے. ٹھیک ہے سر، ہم اٹامک پاور ہیں، ٹھیک ہے، ہم امریکہ کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، پر ہماری کیا کہتے ہیں اسے جو قیادت ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اس کے سامنے انہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتی. میرے کویسچن آپ کرنے دیں مجھے، میں آپ کو کویسچن کرتا ہوں. سونا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کو کہا کہ ہمارے یہاں پر بمباری نہ کریں. ٹھیک ہے، بمباری ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ایک اٹامک کنٹری نہیں ہے کہ ہم انہیں روک سکے. دوسرے کویسچن، ہمارے دشمن کون ہیں؟ ہمارے دشمن ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں. جیسے چیمہ صاحب نے بات کی کہ ہمارے اوپر ہم اپنے بھائیوں کو خود مار رہے ہیں. ایک ہے اس کی پوری فیملی ماری جاتی ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ اسے تو بم دھماکہ کرنا ہے. جب مسلمان لیکن کیا یہی صرف ریزن ہے؟ کیا مطلب وہ جو ہمارے معصوم بچے مار رہے ہیں وہ بھی تو دہشت گرد ہے نا؟ دہشت گرد ان کے اوپر ان کو کس نے اختیار دیا کہ وہ ہمارے بچوں کو مار؟ دہشت گرد انہیں بنایا کس نے؟ میرا کویسچن یہ ہے. اچھا یہ سوال ہے لیکن میں قادری صاحب یہ سوال تو آپ سے، لیکن بٹ صاحب کیا جو ڈرون سے مارے جا رہے ہیں، جس کو میزائل اٹیک سے مارے جا رہے ہیں، وہ کیوں ہمارے بچوں کو یہاں کے کیوں مار رہے ہیں؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ جواب چاہیے قوم کو، اس بات کا کون سی جنگ ہے جو ہمارے خلاف ہے؟ آسمہ بی بی، میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کلیئر اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ جو دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے نا، میں 2 سوال چھوٹے چھوٹے کروں گا، میرا موقف واضح ہو جائے گا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ طالبان جو ہیں افغانستان کے، تحریک طالبان پاکستان، یہ امریکہ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ پہلے دوست تھے، اب دشمن ہیں. دوست ہی ہیں جو ہمیں پہلے تو جہادی تھے، ٹی وی پہ پروگرام چلتے تھے ان کے. اچھا نہیں، امریکہ کے تو دشمن ہے نا؟ اب دشمن ہے نا؟ امریکہ کے دشمن. پہلے تو امریکہ ٹی وی کا پروگرام چلاتا تھا. اچھا اب سن لیجئے، طالبان امریکہ کے دشمن ہیں، افغانستان میں براہ راست لڑ رہے ہیں اور قبائلی علاقہ میں بالواسطہ لڑ رہے ہیں. یہ طالبان جو ہیں، جو دشمن امریکہ کے، ان کو ہمارا نیول بیس جو ہے وہ نظر آیا، پلاننگ کی، نائٹ ویژن گوگلز لگائے، ہیوی اسلحہ لیا اور اس پہ حملہ کیا، ہماری نیوی کی آنکھیں پھوڑ دی، اورین طیارے تباہ کر دیا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. لیکن یہ اتنے اندھے ہیں جن کو کراچی سے امریکی کنٹینر چلتے ہیں، ان کے کانوائے وہ تورخم اور چمن تک جاتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں چلتے ہیں، لاکھوں ٹن لے کر جاتے ہیں. سن لیجیے میری بات، ٹوکیے نہیں. ان کو وہ نظر نہیں آتے، ان کو ہماری تنصیبات نظر آتی ہیں. وہ امریکہ کے دوست طالبان ہیں، امریکہ کے دوست ہیں جو یہ دھماکے کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، امریکہ کے دوست ہیں جن کو پاکستانی فوج کی تنصیبات نظر آتی ہیں. امریکہ کے کنٹینر دیکھتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں. وہ بٹ صاحب یہ بڑا بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری صفوں میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن ہم کیا کریں؟ وہ ہمارے ہاں سے پکڑے جا رہے ہیں. جی صاحب وہ ہمارے صفوں میں چھپے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ آسمہ بی بی ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، میری بات مکمل کر لیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریمنڈ ڈیوس جیسے جو ہزاروں امریکی CIA کے سیکرٹ ایجنٹس موجود ہیں، نان ڈپلومیٹک، میں یہ بات کر رہا ہوں بڑا وثوق کے ساتھ، بڑی کلیئر، نان ڈپلومیٹک پریزنس آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کو ختم کیجئے. قوم ایک پیج پر آ جائے گی. پھر جو کوئی آ کر دھماکے کرے گا، طالبان یا کوئی اور ہو، قوم خود اس سے نپٹ لے گی. پہلے امریکیوں کو نکالو. کیسے نکالیں گے اس کے لیے؟ سونا صاحب نکالیں کہ جب انٹیریئر منسٹر 3500 ویزے امریکنوں کو بغیر انٹرویو کے دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس کے بعد ہمارے امام بارگاہ، ہماری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی؟ بالکل ہوں گی، میں گارنٹی دیتا ہوں. کیسے بٹ صاحب آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میں گارنٹی دیتا ہوں. وہی کر رہے ہمارے. میں گارنٹی دیتا ہوں. امریکہ کے جو بلیک واٹر ایکزی نان ڈپلومیٹک پرسنل امریکہ کے، اگر وہ یہاں سے چلے جائیں، میرا ایک جواب دیں. اگر وہ میری ایک بات، یہ جو میران بیس پہ لڑکا مارا گیا ہے، میں آپ کو انفارمیشن ایک فکر میں پھر آپ کریں. جی امریکہ کی نان ڈپلومیٹک پریزنس ختم کر دیں، پھر بھی اگر کوئی آ کے تخریب کاری کرے، مجھے اسی چوک میں پھانسی دے دیں. اچھا میرا ایک سوال ہے، میں چھوڑے جا رہی ہوں، میں آپ کو ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں، بریک لوں گی. جو میران بیس پہ لڑکا مارا گیا، آپ نے پتہ کیا وہ کون تھا، کہاں سے تعلق رکھتا تھا، وہ کیا تھا؟ کاش کیا وہ بھی پتہ کرتے. وہ ڈیرہ غازی خان کا لڑکا تھا جس کی ماں نے اس کو فیصل آباد کے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. میں یہ سوال چھوڑے جا رہی ہوں، آپ کے لیے جواب اس کا لوں گی. ایک چھوٹی جی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سر مل گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے، DNA ٹیسٹ ہوگا. بتائیں اس کا پتہ، بتائیں
इंडिपेंडेंटली पूरी हम बॉडी मिली है सर, पूरी कोई बॉडी नहीं, मिली कोई है, नहीं उसकी है। इन्वेस्टिगेशन किसी दहशतगर्द का सारे न्यूज नेटवर्क किसी दहशतगर्द का कोई पता किसी अखबार में नहीं आया, मुझे दें, मैं पता कराता हूँ, अगर हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। मीडिया भट्ट साहब उनके घर तक पहुंचा है, मीडिया उनके घर तक पहुंचा है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गर्मा गर्म डिबेट लाहौर की गर्मी में जिंदा दिलाने लाहौर के साथ पाकिस्तान के लोगों की आवाज़। आज का ये प्रोग्राम कि हम क्यों मर रहे हैं, हमें कौन मार रहा है और हमारा असल दुश्मन कौन है। बहरहाल यहाँ पे कुछ और बच्चे भी बात कर रहे हैं। चीमा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, और सोना साहब के भी ये कुछ स्टूडेंट्स आपसे सवाल करना चाहें। जी, आप करेंगे पहले? चलिए, मैं आपके पास मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि अमेरिका को बाहर निकालने, अमेरिका को निकालना किसने बाहर है? अवाम ने तो नहीं ना निकालना। जब लीडर्स ही नहीं आगे लगेंगे तो अवाम कहाँ से लगेगी? अच्छा, वहाँ से ले लें। जी, मैं मेरा क्वेश्चन है जी अपने पैनल से कि मैं आज जहाँ पे ये बात की जा रही है कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग हमारी नहीं है, अमेरिका की जंग है। लेकिन जब आज से पहले रशिया को गर्म पानियों से तक पहुँचने के लिए, रोकने के लिए जो जंग लड़ी गई थी, उसका हमें क्या फायदा हुआ? और क्या वो हमारी जंग थी या नहीं थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या वो जंग हमारी थी या नहीं? बहुत आला ये सवाल मैं चिमा साहब से लेके आपके पास आ रही हूँ। जी, देखिए, जब हम ये कहते हैं कि क्योंकि जंग ये हमारी जवाब, नहीं, ये सवाल आपसे जी, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि जंग हमारी नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप दूसरों से पैसे लेके, डॉलर्स लेके उनकी डिक्टेशन पे चलते हैं, तो फिर आप जो है अपनी पॉलिसी उस पर नहीं बना सकते। और हमारा ये मौक़िफ़ ये है कि जिस दिन हमने इस जंग को अपनी जंग बना लिया, जिस दिन हमने एक होम ग्रोन नेशनल पॉलिसी बना ली, यकीनन, और इमरान खान साहब बारहा ये बात कह चुके हैं, इस दहशतगर्दी की जंग को 90 दिन में जो है ख़त्म किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरी बहन ने भी बात की कि हम अमेरिका गो अमेरिका के बड़े से नारे सुनते हैं, लेकिन अमेरिका को निकालेगा कौन? बात ये कि आज वक्त आ गया है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानें। जब हम तहरीक इंसाफ जब कोई बात करती है, तो हम कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, हम उन अमेरिकन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अमेरिका जब हमारे सैलाब ज़दगान की मदद करता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम एतराज़ उस वक्त करते हैं जब उनके किसी कदम से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जब उनके कदम से तो नहीं आए, तो हमारे अपने कदमों से। ये लोग कौन है? बट साहब ने कहा, काम करते हुए हमारी इंटरनल सिक्योरिटी जब कॉम्प्रोमाइज, देखिए हमारे अंदर के लोग हैं। जो हाफिज साहब ने बात की, बड़ा सिंपल सी बात थी कि आखिर कौन लोग हैं जो बड़े अरसे से जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर जो है ताक लगाए बैठे हैं। और आज आपके सामने है कि उसामा का वाकया, रेमंड डेविस वाला, उसके बाद जो PNS में हुआ है, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो तासुर कायम किया जा रहा है कि शायद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स का नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइज और वही जो करप्ट और जो देखे, अभी जो मेरे भाई ज़हीम कादरी ने बात की बड़ी अच्छी कि जी अमेरिका को जाना चाहिए और हुक्मरानों को नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है हुक्म इस्लामाबाद में बैठे हुए तो बाद में देखेंगे, जो पंजाब में बैठे हैं उनको पहले समझाएं कि जो जाके ब्रायन हंट जैसे लोगों के जाके गिट्टे गोटे पकड़ते हैं कि जनाब हमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी नहीं चाहिए, हमारी पंजाब हुकूमत जो है उसको मंजूर रखें। जब तक ये मुनाफिकत खत्म नहीं करेंगे लीडर्स, तब तक हमारे हालात नहीं हो सकते कि आप कहें कुछ और करें कुछ। 13 बंदों के साथ उसका कोई असर नहीं होगा, पॉलिसी इस तरह नहीं बनती। तकरीर मैं इनसे ज्यादा अच्छी कर लेता हूँ। नहीं, बात तकरीर की नहीं है, कौम को सच बताएं। अगर आपके लीडर्स अगर कॉम्प्रोमाइज हैं तो कम से कम कौम को गुमराह न करें। आप लेके जाएं, आप जाके सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग न करें। आपके पास पॉलिसी नहीं है, आप कौम को बताएं। पॉलिसी की बात है, पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। इन्होंने कहा खुद ने सारी, आप बताएं इनके लीडर्स ने कितने फंड और कितने अकाउंट्स अपने पाकिस्तान में ट्रांसफर किए। ये बात करते हैं यौम तकरीर की, बताएं कौम भूली है, कौम भूली है मनी लॉन्ड्रिंग, कौम भूली है कि कशकोल कर्ज उतारो मुल्क सवारो किसने बर्बाद की और कहते हैं अमेरिका को निकालो। अच्छा, ये क्या बात है यार? मैं कादिर साहब, मैं भट्ट साहब, ठीक, अच्छा चले ये अच्छा देखें, हम कौम की बात कर रहे हैं, यही बात हम इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एक बात, अच्छा ये कह रहे हैं कि अपने लीडरों से ज्यादा कौम की बात करें, कौम की बात। सोना साहब, नेशनल पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बननी चाहिए। इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते।
या आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। बहरहाल नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अपनी कौम की बात करें, कौम की बात। अपना जुमला दुरुस्त करें। आसमान देखें, कौम की बात करता हूँ, दुरुस्त करें। मैं पीपल्स पार्टी से हूँ, लेकिन मैं इन नौजवानों की बात करता हूँ कि देखें, आप जब तक तारीख से सबक नहीं सीखेंगे आप अपने मुस्तकबिल को ठीक नहीं कर सकें। सब चाहते हैं कि यहाँ से अमेरिका निकले, मैं भी चाहता हूँ। कौन निकालेगा उसको? पे तो खड़े हो मैं खड़ा हो रहा हूँ पैरों पे, उसको कौन निकालेगा? सोना साहब सिर्फ नारों से तो नहीं खड़े हो देखिए, मैं आपको अमली बात बता रहा हूँ कि कौन निकालेगा उसको। अमेरिका को इस खित्ते से उनको निकालना है जो अमेरिका को यहाँ लेके आए थे, जिन्होंने अमेरिकन जैकेटें पहनी थी, जिन्होंने रूस की क्लाशनकोफ ली थी और जिन्होंने हिरों ला के इस कौम को नशे में मुब्तला किया था, जो शेयर होल्डर थे उस जंग के अंदर, और जिन्होंने ये कहा कि हम अफगानिस्तान की बका की जंग लड़ने के बाद हम कश्मीर को एक बंदूक से फतह कर लेंगे। आज के दौर में आप ना तोप से ना बंदूक से किसी को फतह नहीं कर सकते। आप कौम को मुत्हिद करके और सियासी क़यादत खुद मुत्हिद होके और इकोनॉमिक्स ठीक करके आप इकोनॉमिक्स ठीक करके इस मुल्क से अमेरिका को निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेहतर है, बहुत बेहतर है। मैं यहाँ से एक और सवाल लेती हूँ इसके बाद। जी, आप बार बार लफ्ज कौम यूज कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? क्या हम कौम हैं कौम की डेफिनेशन के थ्रू? क्या हम कौम भी रहे हैं अब या नहीं? सारी सियासी जमातें अपने लिए बात कर रही हैं, सब लोग अपना, ये सवाल है इनका। आगे इधर से लीजिए। जी मैडम आसमा, मेरा सवाल ज़रा इस सारी जो है ना जो इरेलेवेंट डिस्कशन कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, इससे डिफरेंट है। कौम बनाने के लिए ज़रूरी है सिंगल निसाब तालीम। आप 17 निज़ाम तालीम चला रहे हैं, ओ लेवल से लेकर मदरसे तक, आप कैसे कौम बनाएंगे? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर सवाल है। आज देखें, आज हमारा मुआशरा जो मुख्तलिफ तबकात में बटा हुआ है, इसकी सबसे बुनियादी वजह नाइंसाफ़ी है। और इसीलिए हम फिर वही बात आ जाएगी कि अपने पार्टी की बात करते हैं। हम 15 साल से जद्दोजहद जो कर रहे हैं मुआशी और अदालती इंसाफ के लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो हैव्स और हैव्स नॉट का जो गैप है, अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और कानून, अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम में, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूलों में, कि जहाँ पे आज बुनियादी सहूलतें भी मुयसर रही हैं, और फिर दुनिया को दिखाने के लिए दानिश स्कूल जैसा जो ड्रामा किया जा रहा है वो एक अलग कहानी है आपके साथ। ये बट साहब एक सवाल, ये दहशतगर्दी जो है इसका खात्मा को ये चाहिए कि वो भी अपने बच्चे पढ़ाए ना, या लाके इमरान खान साहब भी पाकिस्तान में पढ़ाए ना, वो तो वलायत बैठे हुए, ये दानिश स्कूल की बात कर रहे हैं। अच्छा बट साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दहशतगर्दी का खात्मा आपके नजदीक कैसे मुमकिन? अपनी बात करो यार, क्यों? और हुजूम को कौम कैसे बनाया जा सकता? देखिए, तुम हमारा वोट बैंक नहीं ले सकते। मेरी गुजारिश ये है कि कौम को जी कौम को असल में लीडर्स जो हैं वो एक रास्ता दिखाते हैं, और जो लीडरशिप होती है वही कौम को इकट्ठा करते हैं और वही कौम को आस और उम्मीद दिलाते हैं। इस वक्त हमारी जो लीडरशिप है वो अमेरिका से डरा रही है। हम उनकी इमदाद के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हम उनके सामने खड़े होंगे वो हमें मार देंगे, हम उनके साथ ये करेंगे वो हमारी आंखें निकाल देंगे। इस तरह आस उम्मीद नहीं बनती। मेरी पार्टी या मैंने अभी तक पार्टी का नाम लिया, लेना भी नहीं चाहता। ये बड़ा आप अहम मौजू पे आज बात कर रहे हैं। पार्टियों को एक तरफ रख दें, लीडरशिप, सारी लीडरशिप में भी, उसमें मेरी लीडरशिप भी शामिल है, मिलकर कौम को उम्मीद दिलाएं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। उसामा बिन लादेन यहाँ पकड़ा गया, 5 की और लिस्ट आपको दे दी गई, कैसे दिलाएं भट्ट साहब? मैं उम्मीद दिलाने उसामा को तो अमेरिका ने नहीं आज छुपाया हुआ। जी सुन लीजिए, इस वक्त दुनिया के अंदर सरवाइव कर रहा है शुमाली कोरिया,